Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes, and today I am going to explain class 11th chemistry chapter number 4, and the topic is hybridization of the elements involving d orbitals. In my previous video I will explain to you the hybridization in between the s orbital and the p orbitals, and today we are going to discuss about the d orbital hybridization. In this topic, we are seeing the elements present in the third period contain a d orbital. In addition to s and p orbitals, the energy of the 3d orbitals are comparable to the energy of the 3s and the 3p orbitals. The energy of the 3d orbitals are also comparable to those of 4s and the 4p orbitals, as concerns the hybridization involving the either 3s and the 3p and the 3d or 3d. 4s and the 4p is possible. Since the difference in between the energies of the 3p and the 4s orbitals is the significant, no hybridization involving 3p and 3d and the 4s orbitals is possible. So हमने यहाँ पर देखा कि 3s और 3p जो है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और 3d ऑर्बिटल्स जो हैं वो कंपैरेबल जो उसकी एनर्जी है वो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. 4s एंड 4p ऑर्बिटल्स जो हैं उनको फिल करने के बाद में जो 3d है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल किए जाते हैं. तो यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपको दिए हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री उनकी डिस्कस की गई है, और उनके साथ में कुछ एग्जाम्पल हैं वो भी आपको शो किए गए हैं. यदि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द sp हाइब्रिडाइजेशन, द जो नंबर है इसके अंदर सॉरी मॉलिक्यूलर जो ज्योमेट्री है इसकी वो लीनियर है, एंड द एग्जाम्पल जो है वो AgCN2 जो है वो आपको शो किया गया है. sp2 में ट्रायगोनल प्लानर है, sp3 में टेट्राहेड्रल है, dsp2 में स्क्वायर प्लानर है, एंड द dsp3 के अंदर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है. नाउ द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द PCl5 sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो PCl5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉस्फोरस Z इज इक्वल टू 15, द रिप्रेजेंटेड बिलो. नाउ द 5 ऑर्बिटल्स 1s 3p and 1d orbitals are the available of the hybridization to yield a set of the 5 sp3d hybrid orbitals which are the directed towards and the 5 corners of a trigonal bipyramidal. ठीक है, तो यहाँ पर आपको शो किया गया है कि किस तरीके से 5 ऑर्बिटल हैं. इसमें 1s 3p और 1d जो है उसको हमने इंक्लूड किया है, और PCl5 किस तरीके से बनता है, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो किस तरीके से यहाँ पर आया है, और इसके साथ में मिलकर PCl5 का जो मॉलिक्यूल है वो तैयार, कंपाउंड जो है वो तैयार हुआ है. It should be noted that all the bond angles of the trigonal bipyramidal geometry are not equivalent. In PCl5, the 5 sp3d orbitals of the phosphorus overlap with the single occupied p orbitals of chlorine atoms to form a 5 PCl sigma bonds. The 3 PCl bond lie in a one plane and make an angle of 120 degree with each other. These bonds are termed as the equilateral bonds. The remaining bonds, the PCl bonds, one lying above and the other lying below the equilateral plane, make the angle of the 90 degree with the plane, and these bonds are called the axial bonds. As the axial bonds pairs suffer more repulsive interaction and form the equilateral bonds pairs. Therefore, the axial bonds have been found in a slightly longer and hence slightly weaker than the equilateral bonds, which make the PCl5 molecules more reactive. Formation of the SF6 sp3d2 hybridization is also a very important topic. In SF6, the central sulfur atom has a ground state, outer electronic configuration of the 3s2 3p4. In the excited state, the available 6 orbitals 1s 3p and 2d are singly occupied by electrons. Those orbitals hybridize the form the 6 new sp3d2 hybrid orbitals, which are the projected towards the 6 corners of a regular octahedron
in SF6, these 6 sp3 hybrid orbitals overlap with singly occupied orbitals to a fluorine atoms to form a 6 SF6 sigma bonds. Thus SF6 molecules has a regular octahedral geometry. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि SF6 जो है वो किस तरीके से sp हमें जो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देता है। यहाँ पे साइड के अंदर इसकी डिटेल स्टडी आपको दी गई है कि जो ग्राउंड स्टेट है उसके अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर जैसे ही एनर्जी मिलती है जो इलेक्ट्रॉन है वो 2d ऑर्बिटल्स के अंदर चला जाता है और इसके बाद में जो क्लोरीन है इसके बाद में जो फ्लोरीन है वो फ्लोरीन जाकर ऐड होता है और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हमें देता है। Now molecular orbital theory is a very important topic. MOT के नाम से हम इसे जानते हैं, molecular orbital theory. The main important feature क्या है इस theory के? The electron in a molecule present in the various molecular orbitals as the electrons of the atoms are present in the various atomic orbitals. The atomic orbitals of the कंपैरेबल एनर्जीज एंड द प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये जो अटोमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी में जो एनर्जीज होती हैं उनमें जो उनकी एनर्जी होती है और उनकी जो सिमेट्री होती है वो प्रॉपर एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनने के लिए सफिशिएंट होती है। वाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन अटोमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस इन अ मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 or more nuclei depending upon the number of the atoms in the molecule. Thus an atomic orbital is the monocentric while a molecular orbital is पॉलीसेंट्रिक। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं और जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं। The number of the molecular orbital formed is equal to the number of the combining atomic orbitals. When two atomic orbitals combine, 2 molecular orbitals are formed. जब 2 atomic orbitals आपस के अंदर combine होते हैं तो 2 molecular orbitals जो होते हैं उनका formation होता है। One is known as the bonding molecular orbital and the second is called the anti-bonding molecular orbital. जो first वाली होगी उसको हम bonding molecular orbital कहते हैं और जो second जो होगी उसको हम anti-bonding molecular orbitals कहते हैं। The bonding molecular orbitals has lower energy. जो bonding molecular orbitals होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो ग्रेटर होती है कंपैरेटिवली। जस्ट एज अ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ न्यूक्लियस in an atom is given by an atomic orbital, the electron probability distribution around a group of the nuclei in a molecule is given as a molecular orbital. The molecular orbitals like atomic orbitals are filled in around accordance with the Aufbau principle, obeying the Pauli's exclusion principle and the Hund's rule. तो ये जितने भी टॉपिक हैं वो मैं आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप एक बार इसको जरूर वहाँ से गो थ्रू कर लें। फॉर्मेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। Hydrogen molecule consisting of 2 atoms A and the B, each hydrogen atoms in a ground state has a 1 electron in 1s orbital. जब ग्राउंड स्टेट की बात करें हम हाइड्रोजन की तो उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 1s के अंदर होता है। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ दीज एटम्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन 5a एंड 5b। यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसको जो वेव फंक्शन है उसका 5a और 5b से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मे बी डिस्क्राइब्ड बाय अ linear combination of the atomic orbitals that can be take place by addition and by a subtraction of wave function of the individual atomic orbital is shown as a phi ab is equal to phi a प्लस माइनस 5b। ठीक है, यदि हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देते हैं हम इसका वेव फंक्शन का तो हमारे पास क्या आएगा कि फाई ए बी इज इक्वल टू फाई ए प्लस माइनस 5b। देयरफॉर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिग्मा एंड द सिग्मा स्टार आर फॉर्म्ड एज, यदि हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को यदि हम शो करते हैं तो जो सिग्मा है उसके लिए हम फाई ए प्लस 5b को यूज़ करेंगे और सिग्मा स्टार जो है उसके लिए हम फाई ए माइनस 5b को शो करेंगे। नाउ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स sigma formed by addition of the atomic orbital is called the bonding molecular orbitals, while the molecular orbitals
sigma star formed as a subtraction of the atomic orbital is called the anti-bonding molecular orbitals। तो हमें anti-bonding molecular orbitals के बारे में पता ही है। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ जो है वो हमारे पास में bonding orbitals होंगे और ऊपर की तरफ जो हमारे पास में आता है वो anti-bonding molecular orbitals को हम पोजीशन देखते हैं। नाउ कंडीशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द अटोमिक ऑर्बिटल्स, अब कौन कौन सी कंडीशन है इसमें, द कंबाइनिंग अटोमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी। तो फर्स्ट बात ये है कि जो अटोमिक ऑर्बिटल्स जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनके अंदर जो एनर्जी है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। द सेकेंड इज द कंबाइनिंग अटोमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम सिमिट्री अबाउट द मॉलिकुलर एक्सिस, और जो कंबाइनिंग अटोमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो सिमिट्री होनी चाहिए वो भी सेम होनी चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, अब कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे पास में, द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर द डिजाइन एज द सिग्मा पाई फाई, ठीक है। सिग्मा पाई और डेल्टा जो है ये हमें इतनी तरीके के टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की स्टडी करनी होती है। इन दिस नॉमेनक्लेचर द सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर द सिमेट्रिकल अराउंड एज द बॉन्ड एक्सिस, व्हाइल पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर नॉट सिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द 1s ऑर्बिटल centered on two nuclei produced by the two molecular orbitals which are symmetrical around the bond axis, such as the molecular orbitals are of the sigma type of are the designed as the sigma 1s and the sigma star 1s. If internuclear axis is taken to be in a z direction, it can be seen that the linear combination of the 2pz orbitals of the two atoms also produce two sigma molecular orbitals designed as sigma 2pz and the sigma star 2pz. Molecular orbitals obtained from a 2px and the 2py orbitals are the not symmetrically around the bond axis because of the presence of the positive lobes above the negative lobes below the molecular plane। यदि हम molecular orbitals के बारे में बात करते हैं तो 2px और 2py जो हैं वो सिमेट्रिकली एक समान नहीं होते, क्योंकि इनकी जो लूप्स हैं जिनसे इनका फॉर्मेशन हो रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव लूप्स जो होते हैं इनमें डिफ्रेंसिएशन हमें देखने को मिलता है। सच मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर लेबल्ड एज द pi and the pi star। A pi bonding MO यानी molecular orbitals has larger electron density above the below the internuclear axis। The pi star antibonding MO has a node between the nuclei। Energy level diagrams of the molecular orbitals are here। We have seen the 1s atomic orbitals of the two atoms form two molecular orbitals designed as the sigma 1s and sigma star 1s। In the same manner the 2s and the 2p atoms orbitals, 8 atomic orbitals and the 2 atoms give rise to be following 8 molecular orbitals। So यहाँ देखिए आपको एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल है वो शो किया है, नीचे की तरफ आपको बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जो है वो शो किया गया है। द एनर्जी लेवल ऑफ द दीज मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैज़ बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपिक data of the homonuclear diatomic molecules of the second row elements of the periodic table। The increased order of the energy of various molecular orbitals for O2 F2 is given below। तो sigma 1s is lower than the sigma star 1s, sigma star 1s is lower than the sigma 2s, sigma 2s is lower than the sigma star 2s। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर हमने एनर्जी को शो किया गया है। This sequence of the energy level of the molecular orbital is not correct for the remaining molecules Li2, B2, C2, N2। तो सबके लिए ये different होता है। The important characteristic features of the order of the energy of the sigma 2pz molecular orbital is higher than the pi 2px and the pi 2py molecular orbital। Now electron behavior एंड द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जो है उसके बारे में हमको बताया गया है कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इफ एन बी इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड एन ए आर द नंबर ऑक्यूपाइंग द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, देन द मॉलिक्यूल इज स्टेबल इफ एन बी इज ग्रेटर देन एन ए एंड द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल इफ एन बी इज लेस देन एन ए। More bonding orbitals are occupied and so the bonding influence is the strong and the stable molecules result, the anti-bonding influence is the strong and therefore the molecule is the unstable। ओके नाउ इसके बारे में जो बॉन्ड ऑर्डर है
वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज 1/2 डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग एंड द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला है BO इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA। द पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर में NB इज ग्रेटर देन NA की वैल्यू होगी और नेगेटिव के अंदर NB इज लोअर देन NA। और जीरो बॉन्ड ऑर्डर मीन्स ऑफ द अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। नेचर ऑफ द बॉन्ड इफ इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज ऑफ द 1, 2 or 3 corresponds of the single, double and the triple bonds respectively as stated in the classical concept. Now bond length. The bond length is order between the two atoms of the molecule may be taken as the approximate measure of the bond length, and the bond length decreases as the bond order decrease. जैसे जैसे bond order increase होता है तो जो bond length होती है वो decrease होती है, एक दूसरे के opposite होते हैं. Magnetic character क्या है? If all the molecular orbitals in a molecule are the doubly occupied, the substance is a diamagnetic, and if one or more molecular orbitals are the singly occupied is पैरामैग्नेटिक. ठीक है, तो आप यहाँ पे मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को ध्यान में रखें. बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स जो हैं वो दिए हैं. S2 के बारे में हमने बात किया है यहाँ पर. और इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. हीलियम मॉलिक्यूल्स जो है उसके बारे में हमने यहाँ पे कंसल्ट किया है. लिथियम के बारे में आपको बताया है. कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है उसकी डिटेल स्टडी आपको यहाँ पे दी गई है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक hydrogen bonding, and hydrogen bonding is a very important topic. Nitrogen, oxygen and fluorine are the highly electronegative elements when they are attached to a hydrogen atom to form a covalent bond. जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये मतलब इनकी ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होती है. when they are attached to a hydrogen bond, जब भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलते हैं तो ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. the electron of the covalent bond are the shifted towards are the more electronegative atoms. This partial positive charge hydrogen atom form a bond with the other more the electronegative atom. This bond is known as the hydrogen bond. ठीक है, तो जब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड आर द शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. ये शिफ्ट होने के बाद में जो वहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं. और ये जो बॉन्ड होता है इज़ वीकर एंड देन द कोवलेंट बॉन्ड. ये कोवलेंट बॉन्ड की तुलना में कमज़ोर होता है. फॉर एग्जांपल इन HF मॉलिक्यूल द हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सिस्ट बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द फ्लोरीन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. ठीक है, इस HF के बीच के अंदर बताया गया H और F के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो तो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, और उसके साइड के अंदर जो हमने डॉट से आपको शो किया है वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, जिसकी जो कि कोवलेंट बॉन्ड की तुलना के अंदर बहुत वीक होता है. हाइड्रोजन के बॉन्ड के बारे में आगे हमने बताया गया है कि कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या रीज़न क्या होते हैं. व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू अ स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स the electron pair of the shared between the two atoms moves far away the hydrogen atom. As a result, the hydrogen atom becomes the highly electropositive with respect to the other atom. There is a displacement of the electron towards the x, and towards the x the hydrogen acquires functional positive charge जिसे हम डेल्टा पॉजिटिव, और वाइल द एक्स अटेन द फंक्शन नेगेटिव चार्ज जिसे हम डेल्टा नेगेटिव से शो करते हैं. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोलर मॉलिक्यूलर हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन वाइल विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द H डेल्टा पॉजिटिव, देन कोवलेंट बॉन्ड, देन X डेल्टा नेगेटिव. और नेक्स्ट जो H पॉजिटिव जो आएगा, H पॉजिटिव और कोवलेंट बॉन्ड के साथ में जो X नेगेटिव जो कंबाइन हो रहा है, तो यहाँ पर X नेगेटिव और H पॉजिटिव के बीच के अंदर एक बॉन्ड क्रिएट होता था जिसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं. तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिया गया है. एक इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है और सेकंड इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है. इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और अ डिफरेंट कंपाउंड्स, है ना, ये आपस में मिलकर ये बॉन्ड बनाते हैं. फॉर एग्जांपल है H बॉन्ड इस केस ऑफ द HF मॉलिक्यूल्स. ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है वो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है. इज फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज इन बिटवीन द टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल
इन द हाइड्रोजन इज़ इन बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम्स। तो ये टू टाइप्स जो हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया है। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है उसका डायग्राम भी हमने आपको शो किया है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो आपको शो किया गया है। सो आई होप कि जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए हैं। तो आप एक बार सभी जितने भी पार्ट हैं इस चैप्टर के उसे एक बार अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।